اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وادی فقر و فنا کی صفت میں اس کے بعد فقر و فنا کی وادی ہے۔ اس کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں۔ اس وادی میں پہنچ کر انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، گونگا، بہرا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سائے تو اس ایک خورشید کے سامنے غائب دیکھے گا۔ جب تمام سمندر ہی متحرک ہو گیا تو پھر اس کے نقوش کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ تمام دنیا نقش بر آب ہے، یعنی فانی ہے، اور جو اس بات سے انکار کرتا ہے وہ دیوانہ ہے۔ جو شخص اس کل یعنی خدا کی ذات سے مراد ہے کہ سمندر میں کم ڈوبتا ہے، وہ ہمیشہ کم آرام سے رہتا ہے اور فارغ البال نہیں ہوتا۔ اس مقام پر جا کر دل کو راحت نہیں ملتی اور سوائے فنا ہونے کے کچھ نہیں ملتا۔ اگر انسان کو یہ تھوڑی سی زندگی دوبارہ دے دی جائے، یہ خدا کی صنعت کو پھر دیکھ سکتا ہے اور خدا اس کے فرائض کو اور بڑھا دے گا۔ اس راستہ پر چلنے والے بڑے بڑے جواں ہمت اور مرد میدان جب اس میدان ہمت میں داخل ہوئے تو ہمت والے راستہ بھول گئے۔ بے شک کسی کو ایک اور قدم چلنے کی جرت تک نہیں ہوئی۔ جمادات یا انسان سب کے سب پہلے ہی قدم میں ڈگمگا گئے۔ جبکہ عود اور معمولی لکڑی آگ میں جلتی ہے تو دونوں خاک ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں شکل میں ایک سی ہوتی ہیں، لیکن اوصاف کے لحاظ سے عود زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ اگر کوئی نجس چیز کیچڑ میں دنس جائے تو اس کی صفات اور خاصیتیں بالکل ویسی ہی رہتی ہیں، یعنی نجس چیز نجس ہی رہتی ہے۔ لیکن اگر یہ ناپاک اور نجس چیز دریا میں گر پڑے تو یہ جو کچھ بھی ہو اس کے لیے مناسب ہے، یعنی دریا میں جا کر یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، وہ دریا کی حرکت میں مل جاتی ہے۔ اب دریا میں مل کر یہ جو کچھ بھی ہو اس کے لیے زیبا و مناسب ہے۔ یہ چیز جو کچھ بھی ہوتی ہے خیال اور عقل سے اس کا بیان باہر ہے۔ محمود طوسی کی اپنے مرید سے گفتگو۔ ایک رات محمود طوسی جو خدا کے بیدوں کے سمندر تھے اپنے ایک مرید سے کہہ رہے تھے کہ تو ہمیشہ گلتا رہ۔ پہلے تو نے عشق کی منزل میں قدم ہی کیوں رکھا تھا؟ پھر بعد میں تو کمزوری کی وجہ سے بال کے برابر نحیف و زار ہو گیا۔ جب تیرے جیسا شخص بال کی طرح کمزور اور نحیف ہو جائے تو اس کی جگہ معشوق کی زلف میں ہے۔ جو شخص معشوق کے عشق میں بال کی طرح کمزور ہو جائے، بے شک اس بال یعنی عاشق کے لیے مناسب جگہ معشوق کی گلی ہے۔ اے عقل مند، اگر تو انسان کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو نہایت باریک بینی سے ایک ایک بال کا ملاحظہ کر۔ اگر تجھ میں غرور اور خود بینی بال کے برابر بھی باقی رہ گئی تو تجھے 7 دوزخوں میں جلایا جائے گا۔ اس عاشق کی حکایت جو بہت روتا تھا۔ ایک عاشق خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر خدا نے ہم سے سوال کیا، 40,000 سال تک ہمیشہ اس نے اپنے خاص خاص بندوں کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی۔ وہ سب ایک وقت میں خدا کے سامنے حاضر ہو کر سجدہ کریں گے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس وقت مجھے میرے ہوش و حواس واپس کر دیے جائیں گے اور مجھے اپنی زندگی کا احساس ہو جائے گا۔ جب میں ایک گھڑی اپنے متعلق سوچوں گا تو اس غم سے نجات حاصل کر لوں گا۔ جب میں غرور نہیں کرتا تو خدا کا مجھے قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میری خود بینی اور غرور بہت برا ہے، کیونکہ یہ خدا سے دور رکھتا ہے۔ اس وقت جب کہ مجھے اپنی خود بینی سے نجات مل جائے گی تو اس بے خودی کی حالت میں مجھے خدائی کا درجہ بھی مل سکتا ہے۔ جو یہاں سے چلا گیا یعنی مر گیا
वो फना हो गया, और जब फना हो गया तो उसे बका नसीब हो गई। अगर तुझ में इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत है तो आग के रास्ता पर चल। तू गमगीन मत हो, क्योंकि चिराग में तेल जलकर कव्वे के पर की तरह से धुआं बन जाता है, और जब ये धुआं आग पर से गुजरता है तो उससे उसका वजूद खारिज कर दिया जाता है, यानी जलने के बाद तेल धुआं बन जाता है। अगर तू जलाने वाली आग पर चले और कुरान जैसा तू पाक व साफ हो जाए और फिर तू चाहे कि उस जगह पहुंच जाए, उस वक्त तू वहां तक पहुंच सकता है। पहले तू अपने नफ्स को आजाद कर और फिर अपने हिस्सा को अदम से भी आगे ले जा, यानी फना हो जा। नेस्ती की चादर को सर से उतार कर फेंक दे, फिर तू फना नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुझे बका नसीब हो गई। और बकाए दवाम की चादर को ओढ़ ले, अपने पांव महवियत और इस्तगरा की रकाब में डाल, यानी दुनिया से गाफिल हो जा और अपनी नाकामी और यास का घोड़ा बढ़ा, यानी नाकामी दुनियावी मामलात में तुझे होगी। इसके बाद फना है और तू इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। फना से ज्यादा कोई दर्जा नहीं है और इसके बाद कोई और किस्म और दर्जा बाकी नहीं है। इसी तरह तू खुश व खुर्म रह यहां तक कि तेरी जिंदगी खत्म हो जाए। अगर तुझ में इस दुनिया का जरा सा भी असर बाकी रहा, यानी दुनियावी ताल्लुकात कायम रहे, तो दूसरी दुनिया में तुझे बाल के बराबर भी जगह नहीं मिल सकती। तू नेस्ती का लिबास पहन ले, यानी फना हो जा और वफा का प्याला पी ले। तू इस मुश्किल और मुसीबत के वक्त अपनी कमर पर फना की पेटी बांध ले। परवानों का शमा के इश्क में जमा होना। एक रात तमाम परवाने एक जगह शमा के इश्क में जमा हुए। तमाम ने कहा कि हमें एक ऐसे परवाने की जरूरत है जो हमारे माशूक यानी शमा से वाकिफ हो। एक परवाने ने बहुत दूर से एक महल देखा और उस महल में शमा का नूर देखा। वो वापस आया और उसने अपनी कौम के सामने शमा की तारीफ में दफ्तर के दफ्तर बयान कर दिए। एक समझदार और अक्लमंद भी उस मजमा में मौजूद था। उसने कहा कि उस परवाना को शमा से कोई वाकफियत नहीं है। एक और परवाना गया और उसने शमा का नूर बहुत दूर से देखा और उस पर गिर पड़ा। अपने पर मारता हुआ ये शमा की रोशनी में गया। शमा ने उस पर गलबा हासिल कर लिया और ये हार गया। वो वापस आया, उसने शमा के विसाल की दास्तान बयान की। उस समझदार ने कहा, ए दोस्त, तेरी नावाकफियत की यही निशानी है कि तू दूसरे परवाने की तरह बातें कर रहा है। एक परवाना और उठा और नाचता कूदता शमा की लौ पर जा गिरा। वो आग से दस्तों गिरेबान हो गया और अपने आप को खुशी खुशी उसमें फना कर दिया। जब उसके सर से पांव तक आग लग गई तो उसके अज़ा आग की तरह सुर्ख हो गए। उस समझदार शख्स ने उस परवाने को दूर से देखा कि शमा ने उसे अपने जैसे रंग का नूरानी बना लिया है। उसने कहा, बस यही परवाना काम का है, किसी को कुछ खबर नहीं, सब कुछ यही जानता है। जब परवाना के उस मजलिस में बेहोश हो गया, वही सब बातें जानता है। जब तक तू अपनी जान और जिस्म से बेखबर नहीं होगा, उस वक्त तक तुझे माशूक की खबर नहीं लग सकती। जिसका एक बाल तक बाकी है, वो अपने माशूक के लिए अपने कत्ल की बकमाले रजा और रग़बत इजाजत देता है। जब तक कोई इस जगह का रास्ता न हो, उस वक्त तक वो यहां एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता। एक शख्स का एक सूफी की गर्दन पर गूंसा मारना। एक सूफी जा रहा था कि एक जालिम ने बगैर किसी खता के निहायत जोर से उसकी गर्दन पर गूंसा मारा। उसने निहायत रंजीदा होकर सर मोड़कर कहा कि जिस शख्स को तूने गूंसा मारा है, 30 साल के करीब हुए कि वो शख्स मर गया और चला गया। उसकी मस्ती का जमाना खत्म हो गया और वो मर गया। उस शख्स ने कहा कि ऐ झूठे, भला कहीं मुर्दे भी बोला करते हैं? जो तू बोल रहा है, अपने झूठ पर शर्म कर। जब तक तू जिंदा है और बोल रहा है, तू खुदा का दोस्त नहीं हो सकता। और जब तक तेरी हस्ती का एक बाल तक भी बाकी है, तू खुदा के वेदों से वाकिफ नहीं हो सकता। अगर एक बाल का ताल्लुक भी बाकी है, तो खुदा तक पहुंचने में बहुत ज्यादा रास्ता बाकी है।
اگر تو چاہتا ہے کہ اس جگہ پہنچ جائے جب تک تیرا ایک بال بھی باقی ہے تو وہاں تک مشکل سے پہنچے گا۔ جو کچھ بھی تیرے پاس دنیاوی ساز و سامان میں سے باقی ہے اسے جلا دے، حتیٰ کہ ایک ایک بال تک جلا ڈال۔ جب تیرے کفن کا ایک تار تک باقی نہ رہے اس وقت ننگا آگ میں کود پڑ۔ جب تو اور تیرا سارا سامان راکھ ہو جائے گا اس وقت تیرا غرور کم ہوگا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تیرے پاس ایک سوئی تک باقی رہ گئی تو پھر تیرے راستہ میں سینکڑوں چور موجود ہیں جو تجھے لوٹ لیں گے۔ جب اس جگہ تیرے اور خدا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، اس لیے تیرا ملک و مال اور دولت کسی کام نہیں آ سکتی۔ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے اسے ایک ایک کر کے دوسروں کو تقسیم کر دے، اور پھر تو گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھ جا۔ جب تیرے اندر بے خودی اور بے ہوشی جمع ہو جائے گی اس وقت تو اچھائی اور برائی کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔ جب اچھائی اور برائی کا سوال جاتا رہا تو سچا عاشق بن جائے گا، اور اس وقت تو عشق میں فنا ہونے کے قابل ہوگا۔ ایک خوبصورت شہزادہ پر ایک درویش کا عاشق ہونا۔ ایک چاند جیسے خوبصورت اور سورج جیسے شاندار بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین لڑکا تھا۔ کسی شخص نے اس لڑکے جیسا خوبصورت کوئی اور نہیں دیکھا تھا، اس جیسا حسین اور ارجمند بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمام معشوق اس کے پاؤں کی خاک کے برابر تھے، اور تمام بڑے بڑے لوگ اس کے چہرہ کے غلام تھے۔ اگر وہ رات کے وقت محل سے نکلتا تو اس طرح معلوم ہوتا گویا جنگل میں سورج نکل آیا۔ اس کی خوبصورتی کا حال بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی بال کی طرح محدود اور کم نہیں تھی۔ اس حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین لڑکے کے حسن کی تعریف 50 سال میں بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اپنی زلفوں کی رسی بنا لیتا تو لاکھوں کے دل کنویں میں جا پڑتے کہ اس کی رسی پکڑ کر باہر نکلیں گے۔ اس کی شمع کی طرح دنیا کو جلانے والی زلفوں نے دنیا کے لیے جینا دوبر کر دیا تھا۔ اگر وہ اپنی نرگسی آنکھوں کو ذرا حرکت دیتا تو تمام دنیا میں آگ لگ جاتی۔ اس کی ہنسی سے جب نمک پاشی ہوتی تھی تو موسم بہار میں ہزاروں پھول کھل جاتے تھے۔ اس کے ذہن کی کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کہاں ہے، کیونکہ جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کے متعلق کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ جب وہ پردے میں سے باہر نکلتا تھا تو اس کا ہر ایک بال سینکڑوں انسانوں کو قتل کرتا تھا۔ وہ لڑکا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے فتنہ شر تھا۔ میں جس قدر بیان کر سکتا ہوں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلتا تھا تو اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا ہوتا تھا۔ جو شخص اس شہزادے کی طرف دیکھ لیتا تھا اسے راستہ میں پکڑ لیتے تھے۔ ایک بے خبر درویش بھی تھا، وہ اس شہزادہ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ جب اسے درد کی مدد ملی تو عشق اور غم اس کی جان پر نازل ہو گئے۔ اس کی قسمت میں سوائے رونے اور غم کھانے کے کچھ باقی نہ رہا ہو۔ مر رہا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ رات دن وہ ایک گوشہ میں بیٹھ رہتا تھا اور تمام دنیا سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ روتا تھا، کچھ نہیں بولتا تھا اور چھپا رہتا تھا۔ وہ غم میں گل رہا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا اور بالکل نہیں سوتا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی اس کے بید سے واقف نہیں تھا، اور وہ اپنے غم کو اس قدر چھپائے رکھتا تھا۔ دن رات ہمیشہ اس کا چہرہ سونے کی طرح زرد رہتا تھا اور چاندی جیسے سفید آنسو بہاتا تھا۔ وہ غم زدہ ہمیشہ کسی کے انتظار میں رہتا تھا۔ ایک بے صبر فقیر اس لڑکے کو دیکھ کر زندہ رہتا تھا، کیونکہ کبھی کبھی وہ اس کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ وہ شہزادہ دور سے دکھائی دیتا تھا تو تمام بازار میں غل مچ جاتا تھا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا میں قیامت آ گئی ہے، اور تمام لوگ بھاگ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ نقیب اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے اور ہر گھڑی سینکڑوں آدمیوں کو قتل کرتے جاتے تھے۔ اس کو چاروں طرف سے چاند کی طرح حلقہ میں سپاہی لے لیتے تھے اور تقریباً 3 میل تک فوج پھیل جاتی تھی۔ جب یہ فقیر ان نقیبوں کی آواز سنتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا اور فوراً اپنی جگہ پر گر پڑتا تھا۔ اس پر غش کی حالت طاری ہو جاتی تھی اور یہ خون میں لوٹنے لگتا تھا
और अपने आपे से बाहर हो जाता था। उस वक्त उसकी आंखों से खून के लाखों आंसू बहते थे। कभी वो कमजोर दरवेश नीला पड़ जाता और कभी उसकी आंखों से खून बहने लगता था। कभी उसकी आंखों से उसके आंसू जम जाते थे और कभी उसकी रश्क की आग से आंसू जल जाते थे। वो फकीर अधमुआ और नीम जान था और खाने को उसके पास आधी रोटी तक नहीं थी। क्या किसी पर इस कदर मुसीबत पड़ी है जिस तरह के शहजादा के हाथों उस दरवेश की हालत हुई थी? वो शहजादा उसकी हालत से बिल्कुल बेखबर था और वो इस ख्याल में था कि सूरज जैसा मर्तबा हासिल कर ले। एक रोज शहजादा अपनी फौज के हमरा जा रहा था कि उस फकीर ने एक नारा मारा। उस नारा के मारते ही वो बेहोश हो गया। उसने कहा कि मेरी जान चली है और मेरी अक्ल गायब हो गई है। वो दीवाना फकीर ये बातें कहता जाता था और दर्द से बेताब होकर अपना सर पत्थर पर मार रहा था। मैं कब तक इस गम में अपनी जान हलाक करूं? मुझ में इससे ज्यादा सब्र की ताकत नहीं है। जब उसने ये अल्फाज कहे तो उसके होशो हवास गायब हो गए और उसकी आंखों और कानों में से खून बहने लगा। शहजादा के नकीब को इस बात का इल्म हो गया और वो उसकी जान लेने का इरादा करके शहजादा के पास गया। उसने शहजादा से कहा कि तुझ पर एक रिंद आशिक हो गया है। बादशाह को ये बात सुनकर इस कदर शर्म आई कि उसके दिल की गर्मी से उसका दिमाग जोश में आ गया। उसने हुक्म दिया कि उस फकीर को ले जाकर सूली पर चढ़ा दो और उसके पांव बांधकर उल्टा लटका दो। उस वक्त बादशाह के सिपाहियों ने जाकर उस फकीर के गिर्द हल्का बांध लिया, फिर उसे सूली की तरफ ले गए। तमाम दुनिया उसे देखकर खून के आंसू रो रही थी। कोई शख्स उस फकीर के दर्द यानी इश्क से वाकिफ नहीं था और कोई उसकी शिफात और सिफारिश नहीं करता था। जब वजीर उसे फांसी के नीचे ले गया तो हसरत और याद से उसकी चीखें निकल गईं। दरवेश ने कहा, खुदा के लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत दे ताकि मैं खुदा की जनाब में सजदा कर लूं। उस गुस्सा में भरे हुए वजीर ने उसे मोहलत दे दी और उस फकीर ने अपना सर जमीन पर रख दिया। उसने सजदा में कहा कि ऐ खुदा, चूंकि शहजादा मुझे बेगुनाह कत्ल कर रहा है, इससे कबल कि मेरी जान निकले मेरी किस्मत में शहजादा का एक मर्तबा दीदार और लिख दे ताकि मैं उसे एक मर्तबा और देख लूं और अपनी जान उस पर से कुर्बान कर दूं। ऐ खुदा, ये दरवेश तुझसे एक आरज़ू रखता है, ये तेरा आशिक है और तेरे लिए कत्ल हो रहा है। जब मैं अपने माशूक शहजादे की शक्ल देख लूंगा उस वक्त मैं हजारों जाने कुर्बान कर दूंगा। मैं तेरे दरवाजा का गुलाम हूं, अगरचे मैं आशिक हूं लेकिन काफिर नहीं हूं। चूंकि तू लोगों की लाखों हाजितों को पूरा करता है, मेरी दरख्वास्त भी मंजूर कर ले और मेरी मुराद दे। चूंकि उस मजलूम ने दरख्वास्त की थी इसलिए उसकी दुआ का तीर ठीक निशाना पर लगा, यानी उसकी दुआ कबूल हो गई। जब वजीर ने उस दरवेश की बातें सुनी तो उसे उसकी हालत और आहोजारी पर रहम आ गया। वो बादशाह के सामने गया और रो रो कर उस आशिक दरवेश का सारा हाल सुनाया। उसने दरवेश की खुदा से इल्तिजा और मुनाजात का हाल सुनाया और सजदा में जो उसने आरज़ू की थी उसके मुतल्लिक भी शहजादा से कहा। बादशाह के दिल में उस दरवेश की हमदर्दी पैदा हुई। वो खुश हो गया और उसकी जान बख्शने का इरादा किया। बादशाह ने शहजादे से कहा, उस दीवाने और बेकस से नाराज मत हो, इसी वक्त सूली के करीब जाओ और उस आशिक के पास जाओ। अपने आशिक और गमज़दा दरवेश से जाकर बात करो। वो इस वक्त गमगीन है, तुम उसकी हिम्मत बंधाओ। तुम उससे मेहरबानी से पेश आओ क्योंकि उसने तुम्हारी वजह से मुसीबत उठाई है। उसे शहद दो क्योंकि उसने तुम्हारी वजह से जहर यानी गम खाया है। उसे वहां से लेकर बाग में आओ और जब तुम उसे साथ ले आओ तो मेरे पास आना। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हसीन शहजादा दरवेश के पास गया। वो सूरज जैसा खूबसूरत शहजादा गया ताकि जर्रा के हमरा खलवत में बैठे। वो मोतियों से भरा हुआ समंदर गया ताकि उसे एक कतरा यानी दरवेश को अपने में जज्ब कर ले। तमाम लोग खुशी में दीवानों की तरह नाचने लगे। आखिरकार वो शहजादा सूली के नीचे पहुंचा और कयामत की तरह फिर शोरो गुल मचने लगा। उस फकीर को मुसीबत में पाया। वो सर झुकाए खाक पर पड़ा था।
उस जगह की मिट्टी उसके खून के आंसुओं से बाग का नमूना बन गई थी और तमाम दुनिया हसरतो अफसोस कर रही थी। वो नाचीज दरवेश अपने आप में महव हो चुका था। इससे बुरा हाल किसी का क्या होगा जैसा कि उसका हुआ। जब शहजादे ने उसकी लाश को खून में भरा हुआ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने चाहा कि अपने आंसू फौज वालों से छुपाए, क्योंकि बादशाहों के लिए रोना मुनासिब नहीं है। लेकिन उस वक्त उसके आंसू खून की तरह बह रहे थे और उसके दिल में हजारों जहानों का दर्द भरा हुआ था। जो शख्स अपने इश्क में सच्चा है उसका माशूक उस पर आशिक हो जाता है। अगर तुझे सच्चा इश्क हो जाए तो तेरा माशूक तेरा आशिक हो जाए। आखिरकार शहजादा ने जो खुर्शीद की तरह हसीन था, मेहरबानी और लुत्फ से दरवेश को आवाज दी। उस दरवेश ने आज तक शहजादा की आवाज नहीं सुनी थी, अलबत्ता उसे दूर से देखा था। जब फकीर ने अपना सर खाक से उठाया तो अपने करीब शहजादे को देखा। जलती हुई आग अगरचे पानी को भी जला देती है, लेकिन पेचोताब खाती है। वो दरवेश गोया एक आग की तरह था और उसे दरिया यानी शहजादा का कुर्ब नसीब हुआ। उसने शहजादा से कहा कि मुझे तन्हा मार सकता था, इस कदर लश्कर और सिपाह लाने की क्या जरूरत थी। ये कहा और इसके बाद खामोश हो गया। उसने एक नारा मारा और मर गया। शमा की तरह भड़क कर गुल हो गया। जब उसे माशूक से वस्ल हासिल हो गया वो मर गया और गायब हो गया। इस रास्ता पर चलने वाले सालिक जानते हैं कि दर्दो गम के मैदान में इश्क में फना होने ने इन पर क्या सितम ढाए हैं। तमाम मर्द इस रास्ता पर फना हो गए और खुदा के रास्ता में फना होने की वजह से इन्हें खुदा का इल्म हो गया। तेरा वजूद अदम से मिला हुआ है, यानी तू फना होने वाला है और तुझे मुसीबत में मजा आता है। जब तक तू एक मुद्दत तक एक मुसीबत में गिरफ्तार नहीं रहेगा उस वक्त तक तुझे आराम का मजा नहीं आ सकता। अगर तुझे ये कीमिया बनानी नहीं आती यानी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए देख। अपने हाथ खोलकर तू बिजली की तरह कूदा था, लेकिन अब तू बिजली के सामने हाथ बांधे हुए इजहार इज्जत क्यों कर रहा है? ये क्या कर रहा है? तू मर्दों की तरह आ गया, अपनी अक्ल चला दे और रिंदों की तरह आ। तू कब तक अपना ख्याल करता रहेगा? मेरी तरह अपना ख्याल तरक कर दे। एक घड़ी जरा अपने नफ्स के मुतल्लिक भी सोच, ताकि आखिरकार तुझे दरवेशों का सा मर्तबा मिल जाए और बेखुदी का मजा और चस्का बढ़ जाए। मैं अपना खुदी में हूं, ना बेखुद हूं। मेरी बुराई और भलाई अक्ल से बालातर है, यानी इसे कोई नहीं समझ सकता। मैं अपने आप में गुम हो गया था, अब मेरा सिवाय आजिज़ी और बेचारगी के कुछ नहीं है। जब फकीरी और गदाई का सूरज चमका तो मेरी आंखों में दोनों जहानों की कीमत एक दाना से भी कम रह गई। जब मैंने इस सूरज का साया देख लिया तो फिर मैं अपनी मौजूदा हालत में नहीं रहा, क्योंकि कतरा फिर दरिया में मिल गया। जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब कुछ पानी में बहा दिया। मैं एक कतरा था और खुदा के भेदों के समंदर में गायब हो गया, और अब मुझे वो कतरा यानी अपनी हस्ती नहीं मिलता। मैं महव हो गया और खुदा की जात में गुम हो गया। मेरी हस्ती का कुछ भी बाकी नहीं रहा और मेरे दिल में गम गुस्सा का एक जर्रा भी बाकी नहीं बचा। अगरचे गुम होना हर एक शख्स का काम नहीं है, लेकिन मेरी तरह फना भी कोई नहीं हो सकता। इस दुनिया में मछली से लेकर चांद तक ऐसा कौन है जो खुदा की जात में गायब होना नहीं चाहता। एक शख्स का नूर से सवाल करना। एक पाक और बा ईमान शख्स ने नूर से सवाल किया कि हम में और खुदा के विसाल में इस कदर फासला क्यों है। उसने जवाब दिया कि हमारे यहाँ आग और नूर के 7 दरिया हैं, इसलिए बहुत दूर के रास्ता पर चलना पड़ता है। जब तू इन 7 दरियाओं को उबूर कर लेगा तो तुझे एक मछली निकल जाएगी। जब ये मछली सांस लेती है तो ये उसका पहला और आखिरी सांस होता है, और तेरे खून का ना सर मिलता है ना पाँव, और बेनियाजी के समंदर में
اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں وہ آسانی سے زندگی بسر کرتا ہے اور تمام دنیا کو ایک سانس میں نگل جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔